जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे, जहाँ हम लोग कोडिंग करेंगे एकदम तगड़े लेवल पे। सो इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा लैंग्वेज वीडियो थ्रू आउट नोट्स, या आपको जिसमें आसानी पड़े आप उसमें समझ सकते हो। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे तीन से चार वीडियोस हमने बना ली है। पहले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन सीखा, सेकंड वीडियो में कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखी, और थर्ड वीडियो में हमने थोड़ा डिटेल में जाना पाइथन को, उसके बैकग्राउंड के बारे में। So in this video we are going to talk about something more about more basic and the things that you need to understand before doing a coding or writing even one statement in a coding. So like first of all we will do it on idle, then for later stage we will upgrade it to VS Code. Okay. So first of all it's our PowerShell, as you know, like we have to control and new folder open, new file open. Now we will start doing coding. Okay, so before doing coding we have to understand all the basic thing, and let's revise all the things. Like first of all, what is programming? A set of instruction that you already know, that is carried out by the computer. The program that we give is instructions, like it act as an instruction for the computers, and while writing that instructions or program, we it is called as programming. Okay, so ideally, as I have told you, it have two types: script mode, interactive mode. Interactive mode, like that the shell, you write one statement, then it will take action upon it, then we have to move on the second statement. But in a script mode we will write whole code at once and get output at once. Okay, writing the code at one place and getting the output at another place. But what is the benefit writing in script mode over interactive mode? Okay, the first of all, the only and the best benefit of writing in a script mode is like that in writing in interactive mode, if you want to run a program, you have to run the code 10 times, you have to write it 10 times. But while writing in script mode, in while writing in a script mode, you can write like writing the code once, you have wrote the code once, then you can run it as many time as you want. Okay, like एक बार कोड पूरा लिख लिए, ठीक है, अब उस कोड को हम लोग जितना बार मन चाहे उतना बार रन करा सकते हैं। पर स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं, इंटरेक्टिव मोड में ऐसा नहीं। इंटरेक्टिव मोड में जो हम लोग कोड एक बार लिखे हैं उसको हम लोग एक ही बार रन करा सकते हैं। अगर दोबारा हमें रन कराना है तो हमें दोबारा पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो basically we can say that yes, script mode is a improvised or a advanced version of our interactive mode. Like the coder have developed where he has been thinking a good thing, like first giving us an interactive mode to interact with it. But if you want to write a long code, we can switch to a script mode. Okay, so this was all, and then we have talked about the genesis of Python, like where from who had developed it. It was developed by Guido, what is his name? Like Guido van Rossum in 1980s during Netherlands, but popularly it was during 1980s to 1990s time. It was all during that time only. Then we have talked about some of the basic things, like as I have written it all my notes, so you can don't need to worry. I will provide you the notes all and everything. So in Python, first of all, basics we have learned about the variables, like the boxes, as you can remember, where we were storing the datas and all. इसी टाइप से हमने और भी आगे पढ़ा, जैसे हाँ बीच बीच में स्विच हो जाऊंगा। तो दूसरा हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स को एम्प्टी बॉक्स में हम लोग कोई भी वैल्यू अगर पुट करना है तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेने के रूल्स पढ़े थे हमने, डाटा टाइप्स पढ़ा था। वेरिएबल रूल लेने के सबसे चार तरीके हैं जो सबसे ज़रूरी है। जब भी कोई वेरिएबल दो तो उसके बीच में स्पेस मत देना, अगर कोई देना चाहते हो तो उसके बीच में अंडरस्कोर देना स्पेस की जगह। तीसरा, हमें कभी भी नंबर के साथ वेरिएबल स्टार्ट नहीं करना है। और चौथा, कभी भी जो भी वेरिएबल लिखना वो अंडरस्टैंडेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंड, लाइक द कोड that you are writing, it should be related to that, not like that many coders like do to make the code short a b c d taking variable. बट सच मानो उससे कुछ समझ नहीं आता है। अगर तुम वही कोड किसी और को दोगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि तुम कोड में क्यों क्या हो। अब जैसे तुम हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि सम लेना है किसी नंबर का, तो हम लोग ए बी सी डी लेके करेंगे तो वो कुछ समझ नहीं आएगा। वही हम लोग लेंगे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड ऐड। तो ये तीन हमने वेरिएबल लिए। फर्स्ट नंबर का मतलब क्या, हम लोग को फर्स्ट नंबर इनपुट लेना है। सेकंड नंबर सेकंड इनपुट लेना है। ऐड मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे। और वही अगर हम लोग ए बी सी डी करके लिख देंगे और कोड किसी और को दे देंगे, ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग ऑफ अबाउट इट। yes, he will understood the logic, but he will not understand that which one is for what.
लाइक ए किसके लिए काम कर रहा है, बी किसके लिए काम कर रहा है, हम लोग चाहे किसी में भी कोई भी वेरिएबल डाल के काम कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली यही सब सीखा था और उसके बाद डाटा टाइप के बारे में गए थे। वेरिएबल्स में हमने यहाँ तक सब सीखा। डाटा टाइप्स में हमने 3 टाइप के बेसिक पढ़े थे जो सबसे ज़्यादा तुम्हें हर कोड में अभी काम आएंगे। जितने बेसिक लेवल या एडवांस इंटरमीडिएट लेवल के कोड करोगे सब में तुम्हें काम आएंगे। सबसे पहला है तुम्हारा स्ट्रिंग्स, फिर है इंटीजर, फिर तुम्हारा है फ्लोट, और एक और है बुलियन, बट वो ज़्यादा कोई काम नहीं आता है। तो हम लोग बेसिकली अभी पहले स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तुम कोई भी कोड लिखोगे ए इक्वल टू इनपुट, हम सब तुम्हें समझाएंगे, पहले थियोरेटिकली समझ लो, फिर उसे हम लोग अच्छे से कोड में डालेंगे, ठीक है? तो जैसे कि तुम मान के चलो स्ट्रिंग मैंने लिया, ठीक है? स्ट्रिंग का क्या है कि बस ए इनपुट और एंटर योर नेम करके डाल दोगे तो डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग सेट रहता है, ठीक है? या अगर तुम्हें मेंशन करना है तो तुम ए इक्वल टू एस टी आर दे के कर सकते हो, ठीक है? अभी पूरा बेसिक समझो, बस इतना समझो। अब बस सुनो ध्यान से कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग पाइथन में डिफ़ॉल्ट रहता है। इनपुट डालोगे, इनपुट लेना होगा तो तुम बस डायरेक्ट इनपुट का कोड लिखोगे तो स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है? फिर आता है वेरिएबल, सॉरी, इंटीजर। इंटीजर में हम लोग नंबर लेते हैं, ठीक है? फ्लोट डेसिमल नंबर लेने के लिए। इंटीजर में तुम सिर्फ होल नंबर ले सकते हो, और तुम्हें अगर डेसिमल में लेना है तो तुम्हें फ्लोट यूज़ करने का। अब बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए होता है, ठीक है? वो उतना कभी काम नहीं आएगा, बस वो बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उस पर उतना ध्यान भी मत देना, ठीक है? अब तुम भी लाइक कि भैया सब तो समझ में आ गया लेकिन ये इनपुट लेना देना समझ नहीं आ रहा कि क्या इनपुट कैसे लें या आउटपुट कैसे दिखाएं हम लोग। तो यस, इन ये वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे। तो शुड वी बिगिन विथ अ कोड? लेट्स बिगिन। तो कोड जैसे कि हम लोग लिखते हैं पहले कि हमें लेना है। अरे हाँ, और एक चीज़ हमने तो बताना भूल गए तुम्हें, कमेंट्स भी हमने पढ़ लिया है। कमेंट्स क्या होता है कि ये कोड को आसान बनाने के लिए, जैसे हैशटैग लगा दो और लिख दो। जैसे अभी हम लोग कौन सा कौन सा कोड लिखते हैं, सम ऑफ टू नंबर से लिखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, ओके? तो ये कमेंट है, ये कंपाइलर नहीं रीड करेगा, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैंने इसे अच्छे से समझाया पिछले वीडियोस में, आप उसको अच्छे से देख लेना। आई बटन में तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे तुम जाके सब देख लेना। इनिशियली तुम्हें आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें जब हम इंट्रो दे रहे होंगे तो तभी तुम्हें ऊपर में आई बटन आ गया होगा। अगर नहीं आया तो तुम वीडियो को पीछे जाओ, तुम्हें वहाँ आई बटन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अभी मत जाओ, पहले ये पूरा वीडियो देख लो फिर जाना। तो सम ऑफ टू नंबर्स देखते, ठीक है? तो इसमें अब हम लोग लेंगे दो नंबर के लिए। तो पहला नंबर लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है? देखो ये हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेना है, हमें नंबर लेना है। तुम नंबर कैसे लेना चाहते हो? अगर तुम्हारा मन है तुम भैया कि कोई भी कुछ भी तो नंबर डाल सकता है, कोई डेसिमल भी डाल सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी डाल सकता है, तो उसको रिस्क नहीं लेने के लिए हम लोग अभी से ही फ्लोट लेके चलेंगे, ठीक है? तुम्हें इस वे में सोचना पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है? सामने वाला प्रोजेक्ट में क्या चाहिए उसे, ठीक है? तो एज अ कोडर मत सोचो, एज अ पर्सन सोचो कि तुम कोड में क्या लिख सकते हो, क्या तुम्हें लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने फ्लोट लिखा, ठीक है? अब हम लोग लेंगे इनपुट। देखो ये इनपुट कमांड क्या करता है ना, ये जो एक कीवर्ड है, ये बेसिकली तुमसे जो यूज़र है उसको इनपुट लेगा, ठीक है? वो एक चीज़ डिस्प्ले करेगा। तुम्हें अगर डिस्प्ले करवाना है कुछ टेक्स्ट के, यहाँ सर ये टेक्स्ट है, इसके यहाँ नंबर डालो या कुछ भी डालो, तो तुम वो कर सकते हो। नहीं तो तुम बस इसको ऐसे सीधे बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुम डायरेक्टली नंबर ले सकते हो। पर अच्छा कोडर होने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो हम लोग फर्स्ट नंबर डालेंगे, ठीक है? ऐसे सामने वाले को समझ में आया कि हाँ ये क्या मांग रहा है। इनपुट का काम है यूज़र से लेना है कुछ वैल्यू या कुछ भी डाटा। तुम्हें अगर यूज़र से लेना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है? और जैसे अब देखो तुम्हें कैसे याद रखें भैया, कैसे याद रखें कि कब हमें इनपुट लगाना है, कब हमें फ्लोट लिखना है? तो सबसे पहले याद रखना कि तुम्हें डाटा क्या लेना है। तो डाटा तुम्हें पता है फ्लोट लेना, तो तुमने फ्लोट लिख दिया। फ्लोट क्या लेना है? इनपुट लेना है, तो तुम्हें यहाँ लिख देना है इनपुट। फिर लिख देना है जो भी तुम्हें स्टेटमेंट देना है, जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है? और ये हमने किया बंद। अब हम लोग डालेंगे लॉजिक। हमें करना है ऐड का एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ डाल देंगे नंबर, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। इसका भी बहुत इजी तरीका बताऊंगा आगे चल के, तुम्हें जैसे कोड भी लिख लोगे सब इजी हो जाएगा। तुम ए बी सी डी भी लगा पाओगे, पर तुम्हें उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लेवल तक जाना पड़ेगा। तो अभी आगे धीरे धीरे करके, ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो के अंदर ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें वो कैसे करना है, ठीक है? तो जैसे हमने यहाँ पे अभी लिख लेते हैं सेकेंड
और सेकंड अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर तुम यहाँ एस छोटा लिखोगे और वहाँ एस बड़ा रहा, या वहाँ एस छोटा और यहाँ तुम कैपिटल में एस लिख दिए, तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, वो पूरा कोड ही एरर हो जाएगा। सो यू शुड टेक लाइक प्रिकॉशंस फॉर इट, ओके। तो हम लोग यहाँ करेंगे प्रिंट, और हाँ ये रहा तुम्हें प्रिंट, PRINT। तो प्रिंट, और हम लोग यहाँ करेंगे ऐड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें अगर किसी भी आउटपुट को, पाइथन लैंग्वेज में तुम्हें कुछ भी आउटपुट निकालना है, तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हर कोड में प्रिंट स्टेटमेंट होगा। तुम कुछ भी लिखो, तुम कुछ भी डिस्प्ले कराना है, तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट के बिना नहीं होगा। तो आउटपुट का जो काम करवाना है तुम प्रिंट स्टेटमेंट से ही कराओगे, ठीक है। और इनपुट का काम जो भी लेना है उसके लिए तुम्हें डायरेक्टली इनपुट कमांड लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये रन किया और अभी इसे रन करेंगे। अरे हाँ, हमने तो फाइल भी सेव नहीं किया, चलो फाइल भी बना लेते हैं। ये हमारा लेक्चर कौन सा है, देखो ये फर्स्ट लेक्चर का है, लेक्चर 3 है ये, ठीक है। हम लोग के लिए लेक्चर 3 है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाला 8.5, दूसरा नंबर डाला 6, 14.5। तो आउटपुट आ रहा है। तो तुमने यहाँ पे सीख लिया, एक हमने यहाँ पे इस कोर्स से हमने पूरा क्या क्या रिवाइज कर लिया, वेरिएबल कैसे लिखना है, हमें इनपुट का काम समझ में आ गया, आउटपुट का काम समझ में आ गया, कमेंट्स कैसे करना है, कैसे कोड लिखना, सब अब हमने इस एक कोड से समझ लिया है, ठीक है। और तुम्हें और कोड की प्रैक्टिस चाहिए तो हमें और कोड आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, पहले पर पूरा कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या लिख रहा हूँ मैं। तो एज तुम्हें मैंने समझा दिया, इनपुट का हमने बहुत तगड़ा सा ये सीख लिया, आउटपुट भी सीख लिया। अब तरीका सिखाते हैं और भी, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हो, हाँ ये ठीक है, ये हम करा सकते हैं कोड। यहाँ पे कोड हम लिख सकते हैं कि देखो, तुम्हें नंबर में हैश लगा सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हें जो कोई नंबर प्रिंट करना है, तुम उसमें हैश लगा के फ्लेक्स कर सकते हो, देखो कैसे। तो तुम्हें लिखना है प्रोग्राम यूजिंग हैश, ठीक है। तो इसमें पता है सिंपल से एकदम कुछ भी नहीं, एक लाइन का कोड है, देखो प्रिंट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कॉमा देना और लिखना सेप, सेप करके एक कमांड होता है, देखो इसमें भी आ रहा है सेप इक्वल टू, और यहाँ तुम्हें जो देना है, जैसे तुम्हें अगर हैश लगवाना है तो हम लोग यहाँ हैश लगवा सकते हैं, हैश करके देखो। आपको तुम कोड देखना, रन F5 एंटर, देख रहे हो कोडों के बीच में जितने कोड है 1 2 3 सबके बीच में स्पेस है, ठीक है। अगर तुम्हें, अगर हिंदी से कुछ प्रॉब्लम है तो आई कैन टीच यू लाइक दैट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज सम ऑफ द these are the little tricks like print 1 2 3, and using sep you can customize your code. It's just having little bit of tricks you can do from to show you to your friends, like see I can do this or like that, okay. So for English now, in English I can translate it for you, like doing input and output things. We have discussed about the data types like input, float, string, completed our boolean logic also I have told you. Now like input and print statement, like before the code which I have written, you can see to take a input we can, like if I could do it again, you can see it now. Yes, print add, okay. So in this code you can understand like taking an input. So while taking input we will use a statement called input, and for providing an output we will use print. Always in every code of Python, if you want to display anything, any digit, any integer or any value, any text, you have to add print statement at the end of the program. For taking the input you have to take input. Now you will ask like how should we know that less what we have to take and how we have to write, like float first or input first. So just think like a coder, okay, think like a normal, like think so normal like that. First of all you will think like what I have to take, a number or a text or a decimal. So if you want to take a decimal, write float, then what you have to take input. So write float, then bracket start input. Then if you want to add some text, yes I will tell you like you should add some text so that the user could understand what, yes, what he have to provide, or like what things he have to give to you to give the output, okay.
So I have, just like you can see in my example, I have written enter the first number. So the user will understand, yes, he is asking for the first number, then he will ask for second number, then he will just add all the things. Okay, so we have to think so simple for writing a code. Okay, don't take it as a headache or anything like that. We will discuss it more in detail. Okay, so don't take about it, don't take a tension or headache about it. Okay, so I have showed you the trick, no, like that print one I have done. Now we will start with, like, you can ask me, bhaiya, if we want to take a brother, like we have to take a input in float, but I want to show the output in integer. Can we do that? Yes, we can do that. Let's try. Okay. So conversion, basically it is called as the conversion of strings. Okay. So like taking some, okay, let's take the example of sum only. La. Yes, here it is. Now we just have to add a simple statement like here print int. Okay, so now the output will be in integer form. Let's check it. Yes, take an integer 5.53.2 and another integer. How much we can take? 1.5, we can say 9. 1.7 we take. Okay, see, the value is coming in integer form. Or we can take another example also, like clicking F5, 0.3, enter 0.2, it will show 0 because there is no integer from 0 to 1, so it will show like 0. Now if it would be 1 point something, it will show 1. Basically, to understand this concept, we have to see like that, the which is the largest number before the point, and which number is after the point. Okay, so before the hands we have 0.5, during the calculation get, so it has 0, so it will show 0 as output. If would be like, see, if I would be doing like this, F5 and 0.3, okay, as, and 1.2, it will show the output as 1. See, because on the beforehand we have 1 and on the other hand we have 2. Okay, as you can understand it. बट जैसे अगर कोई नॉर्मल किसी को समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि जब हम लोग कोई आउटपुट ले रहे हैं ना पॉइंट के बाद, तो अगर हम लोग फ्लोट से उसको इनपुट ले रहे हैं और उसको आउटपुट देना है हमें इंटीजर के फॉर्म में, तो हम लोग जो पॉइंट के इधर होगा ना, लेफ्ट साइड में जो होगा, वो नंबर कंसिडर होगा। पॉइंट के राइट साइड का कुछ कंसिडर नहीं होगा अगर तुम इनपुट इसमें ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिए इनपुट, हम लोग इनपुट का लिए इंटीजर में लिए, तो हमने जैसे इनपुट में लिया 0.3 और सेकंड इनपुट लिया 1.2, तो दोनों को मिला के होता है 1.5। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड कौन सा नंबर है? 1, तो वो हमेशा आउटपुट में 1 शो करेगा। अब तुम जैसे यहाँ पे कर सकते हो कि हम लोग एक जगह, दोनों जगह इंटीजर ले लें, इंटीजर ले लें, इंटी, और अब रन करा और यहाँ कर दे फ्लोट। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट? बताओ बताओ, तब तक कमेंट में भरो, हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया जैसे 5, यहाँ लिया हमने 9, दिखा रहा है 0.0, क्योंकि इंटीजर में हम लोग कोई डेसिमल वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो हमेशा डेसिमल के बाद क्या आएगा आंसर? 0। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा चीज़ था, तुम्हें कन्वर्जन सिखाया कि तुम अगर इंटीजर में, अगर तुम फ्लोट में वैल्यू ले तो उसे इंटीजर में भी दिखा सकते हो, अगर तुम इंटीजर में वैल्यू ले तो उसे फ्लोट में भी दिखा सकते हो। तो यू हैव बोथ ऑफ द ऑप्शंस। तुम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि हाँ, अगर हम लोग कोई नंबर, कोई भी वैल्यू अगर ऐसे नॉर्मल इनपुट ही लिख दे तो क्या लेगा वो? इंटीजर लेगा या क्या लेगा? चलो टेस्ट करते हैं उसको। तो ने इसको लिखते हैं ट्रायल कोड। ट्रायल कोड तो हम लोग लेते हैं ए इक्वल टू कुछ भी नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है क्या करना है हमें इसमें, तो हम लोग बस इसको इनपुट लेंगे और एंटर कर देंगे, एंटर। ठीक है, और एंटर हम लोग कर दिए। अब हम लोग करेंगे प्रिंट, प्रिंट कर देंगे ए को ही। ठीक है, देखते कुछ भी नहीं हमने दिया है, ना इंटीजर दिया, ना स्ट्रिंग दिया, ना फ्लोट दिया, देखते क्या होता है इसमें। जहाँ तक देखते हैं इसमें करके, यहाँ पे हमने निखिल लिखा, ये निखिल शो किया। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इंटीजर दे तो इंटीजर शो करेगा। हाँ, इंटीजर शो कर रहा है, देख रहे हो? तो ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें तुम कुछ भी डालो वो कुछ भी ले सकता है। ठीक है,
तुम्हें अगर स्पेसिफिकली जैसे तुम एक कैलकुलेटर बनाओगे, आगे चल के हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे कैलकुलेटर बनाना है। अगर तुम्हें किसी का डिटेल लेना है उसमें क्या यूज़ करना है, किसी का कुछ मतलब जैसे जिस हिसाब से वर्क होगा हम लोग उस हिसाब से प्रिसाइज करेंगे। अगर मैथमेटिकल काम है तो उसके लिए हम लोग इंटीजर या फ्लोट यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग कैलकुलेटर बनाने के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, तो हम लोग फ्लोट यूज़ करके भी बना सकते हैं। अगर हमें कुछ ज़रूरी है या कुछ नंबर लेना है या नाम लेना है किसी का, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को। तो ये था बेसिकली सब कुछ, एक नॉर्मल हम लोग एक ट्रायल एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक्सप्रेशन सीखते हैं मैथ, जैसे हमने प्लस किया, ऐड किया, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, एडिंग टू नंबर्स और समथिंग लाइक दैट। सो उसको करने के लिए हम लोग चलो एक कोड लिखते हैं कि कौन सा कोड लिखे, कौन सा कोड, हाँ ये कोड लिख सकते हैं कि हाँ वही सम वाला ही कोड लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन लेते हैं इस बार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ओके। तो हम लोग फिर से कोड लिखेंगे। फर्स्ट नंबर, या हम लोग यहाँ पे बस ऐसे फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। FIRST फर्स्ट इक्वल टू, हम लोग यहाँ लेंगे फ्लोट में वैल्यू, फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर। ये बंद, और सेकंड के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे सेकंड फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर। ओह, बंद ही नहीं किया हमने, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक गड़बड़ कर दिया है, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सा नंबर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मल लिखते हैं, मल्टी लिख देते हैं, मल्टी ही लिख देते हैं। तो फर्स्ट, यहाँ हम लोग क्रॉस नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे स्टार। क्या यूज़ करेंगे, स्टार, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रिंट मल्टी, ठीक है। अब करते हैं रन, तो फर्स्ट नंबर 2 और सेकंड नंबर 5, 10। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा सा वैल्यू आ गया है मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमें इसी ही इंटीजर में चाहिए कि हाँ हमें पॉइंट पॉइंट से वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग सिंपल सा लिख देंगे इससे पहले INT। तो अब ये हमें हमेशा वैल्यू देगा, जैसे हमने अभी देखा था 10.10 दिया था। अब हम लोग लिखेंगे 2, इधर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 10 बिना कोई डेसिमल प्लेसेस के। तो ये है कुछ ऑपरेशंस जो अभी हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली कोई मैथमेटिक ऑपरेशन या कुछ भी नॉर्मल एडिशन प्लस माइनस जो भी हम लोग को करना है पाइथन में, तो उसके लिए भी पाइथन हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं इसी लॉजिक को यूज़ करके या ये करके। तो मैं बता देता हूँ, जैसे पहला हम लोग प्लस, एज तुम्हें पता है एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये स्लैशेड सिर्फ डिवीजन, ठीक है। अभी आगे देखो और भी तरीका है, और यह है नॉर्मल मॉड्यूलस। इसमें पता क्या होता है, जैसे हमने वो फर्स्ट चार तो हम लोग सब जानते हैं। परसेंटेज से क्या होता है ना, कि जैसे तुम कोई नंबर डिवाइड किए तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा ना, ये वो शो करेगा। फिर आता है फ्लोट डिवीजन, ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन के कुछ ऐसे देता है, इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अब हम लोग एक एक करके सबको ट्राई करेंगे, ठीक है। एक ही कोड में ट्राई करते हैं, मस्त। इसको करते हैं हम लोग एक ही कोड में ट्राई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायल ऑपरेशन ऑपरेशन। तो हम लोग पहले ले लेंगे इनपुट एज विजुअल ए करके। अब इस बार ले लेते हैं नॉर्मल, हम लोग को लेना है इसमें फ्लोट में ले लेते हैं ना, क्यों है इतना हेडेक लेना कि हाँ भाई इंटीजर डेसिमल नहीं ले पा रही, इसमें सब कवर हो जाएगा। एंटर द एंटर द नंबर, और हमने ये किया क्लोज, और हमने किया बी इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर, और ये हमने किया क्लोज। और अब हम लोग सारे ऑपरेशंस लगाएंगे, सारे के सारे ऑपरेशंस है। पहला ऑपरेशन है हमारा ऐड का,
ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, फिर आता है सब का, तो हमने करेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस बी, फिर हमारा है मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग करेंगे ए स्टार बी, फिर है डिवाइड, तो उसके लिए डिव लिखेंगे और इसका है ए स्लैश बी, फिर आता है रिमाइंडर के लिए हम लोग आर ई एम लिख देते हैं और ए परसेंट बी, है ना। फिर आता है डी डी कर देते हैं फ्लो डिवीजन के लिए इक्वल टू ए डबल स्लैश बी। अब सबको प्रिंट करते हैं, एड प्रिंट एड प्रिंट सब प्रिंट मल्टी प्रिंट डिव, फिर हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट रैम, प्रिंट रैम, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट डी डी। तो अब चले कोड रन कराते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोड लग रहा है ना। तो हम लोग नंबर लेते हैं, क्या नंबर ले, 2 और 5 ही लेते हैं, और क्या, ये रहा मेरा आइडियली 2 और दूसरा नंबर लेते हैं 5। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ऐड की तो 7 आया, सब्ट्रैक्ट के तो -3 चला गया, और मल्टीप्लिकेशन में हमने जैसे लगाया ए डॉट भी तो 10 आया, फिर हमने किया डिवाइड तो 0.4 आया, और रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 2 और 4 से करेंगे 8, तो यहाँ 2 क्यों शो कर रहा है, ये थोड़ा गलत शो कर रहा है हमें, ये रिमाइंडर में 2 नहीं बचना चाहिए था, 2 तो कट जाएगा, या हमने कुछ गलत, अच्छा लॉजिक उल्टा लगा हुआ है ना, सॉरी सॉरी, उसके लिए 2 है, ठीक है, क्योंकि हमने 5 को डिवाइड करना है, सॉरी 10 हम सोच रहे थे, तो 2 को 1 से डिवाइड किया 3, और फिर 1 से किया, हाँ ठीक है समझ में आ गया, हाँ ठीक। फिर हमने यहाँ किया फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में 0 आ रहा है, क्योंकि सब लास्ट में कुछ बचा, शायद नहीं बच रहा है ना, हाँ बच रहा है, लास्ट का डिजिट 0 दिखा रहा है, तो ऐसा ही कुछ है। अगर हम लोग इसको दोबारा रन कराएं अच्छे से, और अगर हम लोग इस बार पहला नंबर ले 10 और दूसरा नंबर ले 2, तब क्या होता है, हाँ अब इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ऐड में प्लस हुआ, माइनस में माइनस हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन में 20 आया, और डिवाइड किए तो 5 आया, समझ में आ रहा है, 10 से 2 को डिवाइड किए, फिर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 10 तो डिविजिबल है 2 से, हाँ, और डिविडेंड वही होता है, बोले ना जो कट के जो बचता है ना डिविडेंड, तो 5 बचा, 5 से कटा है तो 5 हुआ फ्लो डिवीजन में, क्वेश्चन बेसिकली इसमें शो करता है, अब मेरे को याद आया। तो ये सारे कोड थे हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे अब असाइनमेंट हम लोग पढ़ेंगे, असिस्मेंट, ठीक है। तुम्हें इतना बड़ा कोड अगर तुम सिंगल कोड लिखोगे ना, इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला। अब तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो ये सारा कोड तुम्हें समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द in this we are basically using the arithmetic, all arithmetic operations that are present in Python, okay. So first of all it is add, subtract, multiplication, division, and we have remainder, and another floor division, which is basically used to find quotient, okay. So first of all, as in this code you can see, like we have written a input, taken an input in float form, another we have taken the input in like this float form also, first number second number input done, then we have applied our all the logics, like first of all adding it, then using subtraction, then using multiplication, then using subtraction, then remainder, and our division, floor division, basically to find a quotient, okay. So then we have used the print statements, and then you, as you have seen the logic, or I will show you again, like taking number 10 and 5 and 10 and 2. So you can see by adding it gets 2, subtraction it gives 8, multiplication go 20, by dividing it gets 5, and in floor division and remainder it doesn't have anything, because by 2 is totally divisible by 10, sorry 10 is totally divisible by 2,
Then we have questions that we have found by doing question by doing floor division. Okay, so this was all in this topic. Now we will move to another topic. I have told you in the beginning only that yes, this is going to be a little tough and a little lengthy video, because now all the videos will become little bit of lengthy because of the concepts of Python is very diverse. If you dive in Python, no, you will know everything. Like it's a high level language and it's a vast language. Day by day you will learn something new thing only. So this was the topic of trial operational arithmetic operationals. Now we will be moving to assessment operations. Assessment operations basically that like we assign something. Like for the A we have assigned a value 5. Okay. For B we have assigned a value 6. Then we will say C we have assigned a value to add both of them. So it will add both of them, and then we have done the print C, and we will write f5 and 11, because directly we have put the inputs, no, that's why it is showing 11. Okay, so assessment basically assignment is look like the uh, if you look into that, A is assigned with the value 5 and B is assigned with the value 6, and C is assigned with the logic to add both of them. Okay, so this is how we use assessment operator. Basically it's the equal sign only which we call as assessment operator. So one you can see one thing I can show you, like see, if we write a equal to 5 and we can also write a equal to b equal to 5, then you can see the value will be 10. See, you can do as many as, like if you want to add you can take it as add. Okay, we will change the name, then we will equal to C equal to D equal to, you can take any of the numbers like E also, and then you have to just plus in all plus C plus D plus E, and when I will be running it you can see it 5. How it could be possible? Oh, sorry, because we haven't changed that. Now add, now you will see it. No, oh shit. Okay, no problem, no problem, no problem. We will open idle. We will do control O to open the existing file. Then C, we will open it. हाँ, here is the code. So जैसे कि हम लोग देख लिए थे, हम लोग ऐड नहीं चेंज किए थे, यहाँ पे सी है, तो अब ऐड कर दिए हैं. अब देखो क्या आता है वैल्यू. As you can see, 25 is the answer because we have added 5 numbers and we have assigned all of them a single integer 5. So basically this is all about the assessment operators. Now there are various types of it. Okay, now we will be diving it in a more deep, we will be understanding it a better way. Okay, so that you will not have any doubt or any problem with it. Okay, so first of all of the thing is like that key, when you write a equal to, if we want to yes we can do that, like enter your marks. Okay, we will add a bonus on it, bonus in salary. Okay, bonus in marks. Okay, like now we have some base जैसे हम लोग कोई common mistake या we have a common mistake in our test, so teacher decide to give everyone 2 marks in everyone's answer sheet. So we will be writing a code for that. So first of all write the marks and take a variable marks equal to int. No, marks can be in float, not everyone gets 0. And we will take input, enter your marks, enter the marks, as teacher is in taking the input, giving the input, enter the marks. So everyone marks will be updated. So marks, yes, we have completed it, and we will add, like we will make a variable bonus and we will add C plus and equal to. Okay, and we will do 5. Done. Or you can directly, you can, don't you have to write another variable also, you can directly write, like you directly write marks. Okay,
Now what will happen when someone will put the when the teacher will put the input in it like 10, the marks will be plus as it will go in the next step, and after that we will be printing the display marks. Okay, and see, I have done one mistake. If you haven't noticed, I will teach you. Like, see, 5 error. You know where marks? I haven't put the S. Now see, 5 and it will add 5. See the final marks, or you can give the output also. Like see here, like here, this. You can put comma and the final marks is improved to, then we will close it, comma. Now you will see it. The final of marks. Marks to now we will run it. Have 5. Yes, enter. Now 5. The final marks is improved to 10. As you can see, we have increased our marks by using same. You can do like if you want to deduct the marks from everyone, so the improved marks. Improved marks, like someone had got 5 or taking 5, he will get 0. Now we can do same, we can multiply also. Like if we multiply 5 into 5, it will be 25. We can same divide also. Same, every operation, every arithmetic operation you can put 1 marks. Now if you want to find the remainder of also, you can find the remainder also. No, it's for the question, no. So it will show the same answer. What it will show? Yes, it will show 1. Same you can do for the like to find the remainder. F5 it will show 0. 5, enter, 5, 0. So this was all the operations that we have learned till now, or you can do more practice on it. If you want, we can make a big code and we will run it in the next video, and we'll make a big, now the all the videos will be a little bit of bigger because we have to cover the syllabus. Like we have to cover the syllabus of making you a good in Python or advanced level coder in Python. So this was all in this video. And no, wait, we have something more. Like, yes, I have remembered. First of all, you should need to understand some of the basic things I have wrote in my notes during the last. I want to take it. Like, first of all, comment, as I have told you, it makes the code easy, okay, to understandable. Then we have some white spaces. I want to tell you that yes, this were something that doubts were there, which I have got through my friends and my colleagues. So they told me to cover this also. So with the space between marks and equal to is no white space. We can use it from doing the tab. One feature of tab, like while you use the space bar, no, it will give a little space. By using tab, it will give a space of 4. One tab is equal to space 4 times space bars. Okay. And tokens, yes, I have told you in the first video and I haven't covered till now. So tokens, what are the tokens? Tokens are the this small marks, float, input, equal to, that all are tokens. These all come inside like keywords. We have identifiers we call as variables only. Literals, like the operators we are using, like this we are operators, these all come under literals. Okay. Then we have some other parts like we have brackets. 3 types of bracket we use, as we use this bracket also, we use curly bracket also, like this. Then we have this bracket also, sorry, and we have this ball. 3 all brackets we use in coding. Okay. And some of the more basic things we will be covering, like keywords also, in next part of the video. So till now, thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye. Don't forget to like and subscribe. If you want, just leave a comment inside that how I am teaching you and you are able to understand your things or not. Just comment down your doubts also. I will be replying all of your doubts. Or if it will be an important doubt, a common doubt, I will be making it on the video.
making a video on it also. So thank you for watching me. Bye bye.